This internship program is free, and I would be providing you letter of recommendation. I would be providing you internship certificate. I will be giving you entire knowledge about business development executive training, and here there will be 80% practical and 20% theory. आप यहाँ पे learn भी करेंगे, आप यहाँ पे earn भी करेंगे. And let me just check some messages coming. So next thing is, this is a 3-month business development executive internship program where you will be doing learning about the business development process, sales techniques, organizational buying, business buying decision process, managing B2C and B2B customer relationships. तो B2C जो है वो business to consumer होता है, जहाँ हम डायरेक्टली कुछ भी प्रोडक्ट या सर्विसेज हम डायरेक्टली कंज्यूमर्स को देते हैं. एंड B2B होता है जब हम एक बिजनेस कंपनी दूसरे बिजनेस कंपनी को कुछ भी अपना प्रोडक्ट या सर्विस सेल करती है. तो वो रिलेशंस कैसे मेंटेन करते हैं, हाउ टू मैनेज दैट कस्टमर रिलेशनशिप, लीड जनरेशन मेथड्स क्या होते हैं, कस्टमर को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, नेगोशिएशन स्किल्स क्या होंगे जिससे कि अगर कस्टमर बाई नहीं करना चाहता है लेकिन फिर भी हम नेगोशिएट करके उसको हम बाई करा पाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप खुद जब किसी मार्केट में कुछ सामान को खरीदते होंगे और वो सामने वाला आपसे नेगोशिएट करता है कि नहीं ये 100 में मिलेगा, 100 में ही मिलेगा, अगर आप ट्राई कर लो, फिर आप बोलते हो कि नहीं मैं तो सिर्फ 80 रुपीज ही दे सकता हूँ, फिर आप नेगोशिएट कर पाते हो कि नहीं मैं इतने कम में ही प्राइस का पे करूंगा. So you would be doing and many more things would be there in the business development area, and also you would be able to earn because you will get a lifelong earning opportunity. You will become the member of Bridging the Success Gap community. This community is basically for helping out the college freshers, persons with recent career gaps and recent graduates जिन्होंने last year तक अपना graduation complete किया हो और अभी business development सीखना चाहते हैं और इंटरव्यू देना होता है, उन्हें पता नहीं होता है कि हम कैसे इंटरव्यू दें. So you will become a member of Slack corporate communication channel. Slack is a very known corporate communication channel where you will be learning about how to communicate at the corporate level. So let me tell you about my company. जो पहले कुछ दिन भी समझे थे, थोड़ा सा आपके लिए एक you can say revision जैसा हो जाएगा. Habgen Educational Services is an edtech startup. I founded this company in the year 2017 and then got incorporated in the government in the year 2019. मैं हिंदी में भी बताना चाहूँगी, मैंने इस कंपनी को 2017 में लॉन्च किया था, फाउंड किया था और 2019 से मैंने अपनी कंपनी को गवर्नमेंट में इनकॉर्पोरेट किया. तो अभी ऑलरेडी हमारी कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में है. दिस इज अ कॉर्पोरेट कंपनी. हमारे पास DPIIT का रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट है, दैट इज डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, राइट. सो MSME का हमारे पास सर्टिफिकेशन है. स्टार्टअप इंडिया जो स्टार्टअप के लिए इकोसिस्टम है उसमें हम रजिस्टर्ड है. स्टार्ट इन यूपी जो कि गवर्नमेंट ऑफ यूपी का इनिशिएटिव है उसमें हम रजिस्टर्ड है. तो वी आर अ वेरी रेप्यूटेड कंपनी एंड वेरी मच नोन इन द edtech globally. So next is, these are the places where we are already featured. जगहों में हम already बहुत जाने पहचाने जा चुके हैं और हमें यहाँ पे awards मिल चुके हैं. Next is this is our core team. I am the founder and managing director, and I am already having a 15 years of experience in various fields in education, in pharmaceutical research and development, and content management. Then next is Mr. Udaykant Mishra. He is the director of operations. He is a retired person. And then Shashank Srivastav is sports manager. And Sujit Chaudhary is consultant CA who is looking into the taxation of the company. So the motto which we have is learn success driven rather than marks driven. इसका मतलब ये होता है कि आप सिर्फ नंबर पाने के लिए नहीं पढ़े, लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए पढ़ाई करें, so that you can become successful and you are able to achieve your life goals, your career goals, and ultimately you become happy in your life. So this Habgen word is actually the amalgamation of happiness and genius. जब आप जीनियस बनते हैं, जब जीनियस कब हम बनते हैं, जब हम सक्सेसफुल होते हैं, और जब हम सक्सेसफुल होते हैं, जब हम जीनियस बन जाते हैं तो हम हैप्पी भी हो जाते हैं. तो
So this is amalgamation of happiness and genius. So this is an edtech startup company जहाँ पे हम comprehensive solution देते हैं quality learning का, सक्सेस माइंडसेट डेवलपमेंट का और पर्सनलाइज्ड करियर स्ट्रैटेजी का, जिसमें आप अपनी लाइफ में किस करियर में जाना है, कौन सा पैशन, इंटरेस्ट, स्किल है आपके पास में, बिकॉज ऑफ दैट यू शुड परस्यू अ पर्टिकुलर करियर, वो सारा हम यहाँ पे बताते हैं. सो नेक्स्ट, द बिग विजन विच वी हैव इज टू क्रिएट अ वर्ल्ड वेयर द वर्ल्ड विच इज फुल ऑफ learner centric seamless platform, जहाँ पे जिनको कुछ भी पढ़ना है वो पढ़ेंगे, एक्सेल करेंगे और लाइफ में सक्सेस पाते जाएंगे. That is our motto. You can say that is the vision we have, a very big vision, and this is the company that is the global market. जिस प्रॉब्लम एरिया पे हम वर्क कर रहे हैं, that is the success gap. So as I in a very first slide said you that learn success driven rather than marks, because success gap is that gap area is increasing. बहुत ज्यादा गैप बढ़ते जा रहा है because स्टूडेंट जब सक्सेस ड्रिवन नहीं पढ़ते हैं तो उनको पढ़ाई में एंगेजमेंट नहीं मिल पाता है, उनका अचीवमेंट नहीं हो पाता है, और जो उनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है कि लाइफ में हमें कुछ करना है वो बहुत ही ज्यादा डिटेरियोरेट कर जाता है. सो प्रॉब्लम जो है मेन, अगर हम K-12 सेगमेंट में देखते हैं, जिनको K-12 सेगमेंट नहीं समझ में आता होगा, K-12 सेगमेंट वो होता है जहाँ पे KG से लेकर के क्लास 12 को हम K-12 सेगमेंट कहते हैं. वहाँ पे किसी भी सिंपल एक पेरेंट को आप ले लो, कम से कम 1.5 लाख रुपए स्कूल के एजुकेशन में जाता है. इतना देने के बाद भी they look for the private supplemental tuition. Approximately 70% पेरेंट्स हैं जो ट्यूशन के लिए सर्च करते हैं. अब स्कूल में पैसा देने के बाद, ट्यूशन में भी पढ़ाने के बाद में भी बच्चे को ये नहीं पता होता है कि हमें किस करियर पाथ पे जाना है, हमारे पास क्या पैशन है, क्या वैल्यूज है, क्या स्किल्स एंड इंटरेस्ट है मेरे पास में, जिसको मैं समझ करके अपने किसी करियर जर्नी पे जा पाऊँ. और इसी की वजह से जो हमारा सक्सेस अचीवमेंट रेशियो है वो बहुत ही अलार्मिंगली पुअर है, एंड दैट इज ओनली 10%. मतलब जो बच्चा KG और 1 में अगर अच्छा मार्क्स ला रहा होगा, अच्छा सक्सेस कर रहा होगा, जिसको नॉलेज गेन हो रहा होगा, वो भी ऊपर आते आते ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करते करते बिल्कुल ही मतलब नॉलेज कम हो जाता है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम हमारा इतना नॉलेज नहीं दे पाता है और स्टूडेंट बहुत ही कंफ्यूज होते हैं, डिलेमा में रहते हैं कि मुझे करना क्या है अपनी लाइफ. तो ये हमारे टेस्टिमोनियल्स है सिंस वी आर इनटू द मार्केट 6 years, एंड सो अभी ये थोड़ा सा रिपीटेशन है कि व्हाट वी प्रोवाइड इज दैट लर्न, एक्सेल एंड गेट सक्सेस ऑन द गो बाय लर्निंग असिस्टेंस, बाय द सक्सेस स्किल्स, and by providing a career journey, career strategy to the students who come to us. So we have 2 products. One is My Tutors Online, where we have exclusively online tuition classes, जहाँ पे हम बिल्कुल भी कोई होम ट्यूशन प्रोवाइड नहीं करते हैं, हमारा ऑनलाइन ट्यूशन क्लास होता है और पैंडेमिक के पहले से ही हमारा चल रहा है. ऐसा नहीं है ये पैंडेमिक के टाइम में ही हमने लॉन्च किया हो. सिंस 2017 एंड वी स्टार्टेड ग्लोबली. हमारा जो फर्स्ट स्टूडेंट था वो भी लंदन से था, right? So in this one we have online classes and online classes for the school subjects and competition exam. Next is we started a product for the college freshers where we provide the career and success skills. वो एक अलग ही पूरा कोर्स करिकुलम है. उसका उस प्रोडक्ट का नाम स्किलेसी है. जब आप मेरे हैप्टन एजुकेशन के बारे में और भी नेक्स्ट मंथ से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम स्किलेसी में क्या प्रोवाइड करते हैं और हम माई ट्यूटर्स ऑनलाइन में क्या प्रोवाइड करते हैं. माई ट्यूटर्स ऑनलाइन के अंदर ही अभी हम ये इंटर्नशिप प्रोग्राम्स कर रहे हैं और हम हर साल करते हैं इसको. इस इंटर्नशिप प्रोग्राम में जो पहला बैच होता है वो बिल्कुल फ्री में पड़ता है, एंड यू आर द लकी वंस फॉर दिस ईयर टू बी द फर्स्ट बैच which will be learning free. And now when you will be learning and then earning through providing your referrals, जब आप अपने फ्रेंड से बताएंगे कि यहाँ पे ये कोर्स है, बहुत ही अच्छा है, इम्पोर्टेंट है, फिर आपके थ्रू जब वो हमारे सिस्टम में आएंगे, you will be earning your credit points. You will use that credit points for more learning, and also they will be using your referral code and they will be learning more. So हमारे पास जो भी स्टूडेंट्स आते हैं उनको एक्सक्लूसिवली हमारे पास AI इनेबल्ड लर्निंग मिलता है, जो स्कूल सेगमेंट में वो ऑलरेडी मिल रहा है. एंड लर्नर सेंट्रिक का मतलब क्या है? जो बच्चे को जैसा पढ़ना है वैसा ही अडेप्ट करके हम अपना कस्टमाइज्ड कोर्स उनको प्रोवाइड करते हैं. सक्सेस स्किल्स का डेवलपमेंट होता है,
करियर स्ट्रैटेजी हम बताते हैं, लीडर बोर्ड रैंकिंग होती है जहाँ पे स्टूडेंट को पता चल पाता है कि मेरा पोजीशन क्या है, मेजरेबल ग्रोथ है, सो दैट अगर कोई बहुत ही लोअर लेवल पे हमारे पास आता है स्टूडेंट, तो पढ़ते पढ़ते वो हायर लेवल तक पहुंच जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई अपने आप को लेवल 1 में समझता होगा कि जब वो हमारे पास आया था, पढ़ने के बाद वो लेवल 10 तक पहुंच जाता है। सर्टिफाइड मेंटोर्स है हमारे पास में, जिनका मैं खुद इंटरव्यू लेती हूँ, एंड देन आई सर्टिफाई देम कि हाँ ये बिल्कुल सही है हमारे सिस्टम में पढ़ाने के लिए। इट टेक्स अराउंड 4 राउंड्स टू सेलेक्ट। 2-वे इंटरैक्टिव है। आई विल गिव यू एन एग्जांपल फॉर वेदांतु एंड बायजूस कंपनी। वहां पे स्टूडेंट स्ट्रीमिंग में पढ़ते हैं और आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 150 और मोर स्टूडेंट्स आर लर्निंग एट द सेम टाइम। तो जैसे मैं अभी आपके सामने लाइव में बात कर पा रही हूँ, आप मुझसे इंटरेक्ट कर पा रहे हो, वैसा वहां पे नहीं हो पाता है। तो हमारे सिस्टम में 2-वे इंटरैक्टिव होता है। अगर जो हमारी ग्रुप क्लासेस होती है, दैट इज मैक्सिमम 15 वी टेक इनटू अ ग्रुप, और जो सेशंस रिकॉर्ड हो जाते हैं हमारे लाइव सेशंस के टाइम में, उनको स्टूडेंट रीप्ले करके कभी भी पढ़ सकते हैं। 24/7 का सपोर्ट होता है। ये आपको और समझ में आएगा जब आप लर्न करने के बाद में, जब आप अर्निंग के फेज में आते हैं, आप किसी को भी हमारा प्रोडक्ट को सेल करते हैं, तो आपको ये पता रहेगा कि क्या यूनिकनेस है हमारे पास, जिसका आज पहला मैं सेशन लूंगी, फिर आपको समझ में आएगा। तो एक कोलैबोरेशन हमारा शाइन प्रोजेक्ट के साथ हुआ है फॉर द करियर असेसमेंट एंड करियर काउंसलिंग। I myself is a certified global career counselor. So we have collaborated with this company, and this company is also one of the best companies, as you can see, Best Company 2021, Best Startup 2020, and member at the Telangana Hub. जो T Hub लिखा हुआ वो Telangana Hub है. They are also recognized by the government of India. So basically, I would be providing a Shine project code. That referral code you will use to register on that website. वहाँ पे career assessment and career counseling के sessions को जब आप किसी कस्टमर को बताएंगे, और अगर वो उसको असेसमेंट को अटेम्प्ट करता है पैसे वहां पे दे करके, तो आपके पास भी आपकी अर्निंग आएगी, राइट। तो जब तक आप उसका कस्टमर्स को आप सेल कराते रहेंगे, तब तक आपके पास अर्निंग आएगी। सो दैट्स व्हाई दिस इज अ लाइफ लॉन्ग अपॉर्चुनिटी विद दैट कंपनी एंड विद आवर कंपनी आल्सो, राइट। नेक्स्ट इज जैसे मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल में बताई हूँ कि अगर आप 100 स्टूडेंट्स एनरोल कर पाते हैं, तो मिनिमम इज द 25,000 INR। देन इसमें जो 4th नंबर पे लिखा हुआ है 10,000 INR, अगर आपका 100 एनरोलमेंट हो जाता है तो वो एक एक्स्ट्रा बोनस मिलता है आपको। इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है कि जैसे जैसे स्टूडेंट असेसमेंट को लेते हैं, उस रेफरल कोड को, जो रेफरल कोड आप उनको देंगे, तो आपका रेफरल कोड यूज करके वो 50% डिस्काउंट पे वो स्टूडेंट उसको अपीयर करता है, तो आपको आपका मार्जिन मिलता है, एंड द स्टूडेंट आल्सो अपीयर फॉर दैट टेस्ट। सो दिस कीप्स ऑन। इसमें B2B सेल्स है, जिसमें स्कूल्स को हम करियर काउंसलिंग का पूरा एक पैकेज सेल करते हैं। अगर आप किसी स्कूल को अप्रोच कर पाते हैं, तो आपको पर स्टूडेंट 1,000 रुपीज मिलता है, एंड दिस इज एक्सक्लूसिवली फॉर February मंथ। आप लोगों को ये मन में डाउट हो रहा होगा कि हम कस्टमर्स कहाँ से लाएंगे। आपके अपने रिलेटिव्स में फ्रेंड्स हैं, उनके अगर कोई भाई बहन है या आपके घर में भी हैं, आप बिल्कुल बता सकते हैं करियर असेसमेंट के बारे में। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, अपने लाइफ के करियर को समझना कि मुझे क्या अपने लाइफ में करना है, और उसको करने के लिए असेसमेंट देना पड़ता है। उसमें हमारा साइकोमेट्रिक रिजल्ट्स आता है, एंड थ्रू दैट ओनली अ करियर काउंसलर एक्सप्लेन्स कि व्हाट इज द बेस्ट करियर फॉर यू। ये तो हो गया जहां आपकी पहचान है करने के लिए। इस प्रोजेक्ट साइन प्रोजेक्ट्स में हम आपको लीड्स भी देंगे, उस लीड्स पे आपको कॉल करना होगा। कॉल करेंगे तो क्या स्क्रिप्ट है वो, जब आप उसमें शाइन प्रोजेक्ट में जब आप साइन अप करेंगे, उसमें एक FAQ का पेज है। उस FAQ के पेज में सारे डिटेल्स दिए हैं। धीरे धीरे आप मेरे से सीखते भी रहेंगे। आपको जहां कंफ्यूजन होगा आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसमें शाइन प्रोजेक्ट के फाउंडर का भी नाम दिया हुआ है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है, आप सिर्फ मेरा नाम बताएंगे कि सपना मैम के उसमें मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ, एंड मैं इस कॉल को नहीं कर पाया, मुझे कुछ इसमें गाइडेंस और भी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज 2nd मंथ से आप चाहें तो शाइन प्रोजेक्ट्स को अलग करते रहेंगे, और साथ में मेरा जो हैब्डन एजुकेशन का जितने भी कोर्सेज है उसको भी आप आगे सेल ऑन कर सकते हैं। तो आपका शाइन प्रोजेक्ट्स और हैब्डन एजुकेशन मिला के बहुत अच्छा इंसेंटिव बन जाता है। देन यू विल बी एबल टू लर्न। एंड ये वीडियो मैं अभी फिर से नहीं दिखाना चाहती हूँ, अगर किसी को देखना होगा मैं व्हाट्सएप ग्रुप में फिर से भेज दूंगी। दिस इज अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोमेट्रिक टेस्ट एंड द करियर काउंसलिंग। दैट इज व्हाई
वी नीड द करियर असेसमेंट, व्हाई करियर काउंसलिंग इज नीडेड, इस वीडियो में देख के आपको समझ में आएगा. लेट मी मूव ऑन टू द स्लाइड. सो बेनिफिट्स मैं आपको यहाँ पे बता दूं. बिजनेस डेवलपमेंट ट्रेनिंग वर्थ 54,000 का मैं फर्स्ट बैच को एब्सोल्युटली फ्री देती हूँ. सर्टिफिकेट ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव आपको मिलेगा, which will help you in your future job prospect. आप किसी भी कंपनी में जाएंगे तो हमारा सर्टिफिकेट है, आप यूज कर सकते हैं और हमको बता सकते हैं कि आपको ये करने आता है. Then certificate of the internship will be given and course completion था जो सेकेंड वाला था वो भी आपको मिलेगा. And letter of recommendation minimum from 3 different corporate companies. एक आपका शाइन प्रोजेक्ट से होगा, एक हमारी हैप्पीनेस एजुकेशन से होगा और तीसरी कंपनी जब आपको हम और भी लाइव केस प्रोजेक्ट देंगे सेल करने के लिए तो आपको उस कंपनी का भी सर्टिफिकेट मिलेगा, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन. एंड कंटिन्यूड पैसिव इनकम सोर्स. कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज पैसिव? पैसिव इनकम का क्या मतलब होता है? कोई चैट पे बता सकता है मुझे? फास्ट कोई तो बताए कि चैट का सॉरी पैसिव का मतलब क्या होता है? हाँ, सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम है. मतलब समझ लीजिए कि जैसे हम एक पौधा लगाते हैं तो आपको उसमें बीज भी डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपके पास उसके फ्रूट्स आएंगे उस पौधे के. ठीक है. तो नेक्स्ट इज क्रेडिट पॉइंट्स आपको मिलेंगे मेरे वाले वेबसाइट पे, जहाँ पे आप और भी अपने फ्यूचर करियर के लिए स्किल्स लर्न कर सकेंगे. एंड ये मैंने पिछले वीक में आप लोगों को एक असाइनमेंट दिया था. जितने भी ये लिंक्स हैं, यूट्यूब, लिंक्डइन न्यूज़लेटर, फेसबुक, ट्विटर, सब आप लोग सब्सक्राइब एंड फॉलो कर लीजिए, सो दैट जब आप जो भी पढ़ेंगे या जो कुछ भी आपको सोशल मीडिया पे डालना पड़ेगा, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ लर्निंग, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पेज है, तभी आप टैग करके उसको लिख पाए. ये रेफरल कोड अगर किसी ने अभी तक नहीं साइन अप किया है तो वो व्हाट्सएप ग्रुप में अगर नहीं देख पा रहा है तो मुझे उस ग्रुप में बता दे, मैं फिर से ये सारे लिंक्स एंड ये जो प्रोजेक्ट का कोड है वो फिर से भी. तो नाउ लेट मी क्लोज दिस एंड यस. अब मुझे बताएं कि अभी जो मैंने बताया उसमें से किसी को क्वेरी है जो पिछले बार नहीं आए थे, तो मैं आपको फटाफट इसका आंसर दूं और फिर आज के हम फर्स्ट सेशन पे चलें. क्या सबको समझ में आ गया? यस मैम. उमेश, मुकेश? यस मैम. ओके, तुषार को तो आ गया है. मुकेश और उमेश पहली बार आए थे, तो आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप फटाफट पूछिए. आई गिव यू जस्ट 1 मिनट मोर बिकॉज मुझे आज का वो सेशन स्टार्ट करना है जिसके लिए बाकी बच्चे आए हैं. यस मैम. ओके, वेरी गुड. एंड सो जो असाइनमेंट था वो आप कर लेंगे. सारे लिंक्स को आप फॉलो अप एंड सब्सक्राइब कर लेंगे, सो दैट जब हमें सोशल मीडिया में डालना होगा तो आप टैग कर पाओ. ठीक है. सो आई एम अगेन लेट मी ओपन दैट स्लाइड एक्चुअली फर्स्ट. तो जो फर्स्ट थिंग है किसी भी बिजनेस डेवलपमेंट में इज टू अंडरस्टैंड अबाउट द बिजनेस डेवलपमेंट बेसिक्स. ओके, सो दिस विल बी इंटरैक्टिव क्योंकि मैं पूछूंगी भी आप लोगों को क्या क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है. आई एम ओपनिंग द चैट बॉक्स ऑल्सो हियर. सो मुझे कौन बता सकता है कि बिजनेस डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? एनीवन कैन राइट द आंसर, और जो सबसे पहले लिखेगा दैट वुड बी द विनर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट? अगर लिखना नहीं चाहते तो आप ऑडियो. यस, जतिन राइट. फाइंडिंग आउट स्ट्रैटेजीज टू स्केल द बिजनेस. एनीवन एल्स? क्योंकि डिफरेंट आंसर्स आएंगे तभी तो हमें पता चलेगा, हम ब्रेनस्टॉर्म कर पाएंगे कि एग्जैक्टली होता क्या है.
आप रेस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो मुझे पता भी नहीं चलेगा कि आपको बिजनेस डेवलपमेंट के बारे में क्या आइडिया है, क्या नहीं है। आप लोग चाहें तो वीडियोस ऑन कर लीजिए, बिकॉज आई रियली वांट दैट। मैं किसी दीवार को नहीं पढ़ा रही, मेरे पास स्टूडेंट है जिसको मैं पढ़ा रही हूँ। No one else? Okay. So, yeah, very good. Business development is all about developing a business from scratch. And what would be the first thing जहां से business development का हम कुछ सोच सकते हैं? ऐसा क्या है? Okay, Bhavyanidhi says communication with clients and their customers. So, yeah, this is one stream, or you can say one pathway for developing a business, right? But my question was, what is business development? So business development is all about, developing the entire business from 0 to a level of 10, जहाँ पे आपका प्रोडक्ट पूरा बन चुका होता है और मार्केट में कस्टमर्स भी बन जाते हैं, and the revenue comes up. So business develops from 0 when you do not have any product, but the first thing that is required for a business is what? क्या होना चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? राहुल, आप बता सकते हैं बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? मैम एक अच्छी स्ट्रेटजी का अपॉर्चुनिटी। स्ट्रैटेजी आपका आएगा थर्ड स्टेज में। एनीवन गेस क्या होगा सबसे पहले? विजन से भी पहले एक चीज है, विजन कम्स द सेकेंड। पहले तो प्लानिंग से भी पहले एक चीज है, एंड दैट इज मैम प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। हाँ, प्रॉब्लम भी, मतलब नॉट एग्जैक्टली, बट प्रॉब्लम से पहले है आइडिया। तो आइडिया इज द, you can say, the बीज or the seed for any business to get developed. अगर मेरे पास कोई आइडिया ही नहीं होता तो मैं बिजनेस कैसे स्टार्ट करती? तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? आइडिया मैम। यस, जब आइडिया होगा तभी हम कुछ विजन सोचेंगे और तभी हम कोई प्लानिंग करेंगे, तभी हम कम्युनिकेशन विद क्लाइंट्स तक जाएंगे। तो सबसे पहले हमें चाहिए आइडिया। ओके, एक मिनट, चैट बॉक्स मुझे हटाना होगा सो दैट आई कैन सी व्हाट इज कमिंग ऑन द स्क्रीन। ओके, तो जब हम एक आइडिया के बारे में सोचते हैं तो आइडिया में सबसे पहले हमें क्या नेक्स्ट चीज सोचना चाहिए? जतिन, यू कैन कीप द वीडियो ऑन। तो वो क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है, जो क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ वो आंसर वहां लिखा हुआ है। जब हम किसी आइडिया के बारे में सोचते हैं तो आइडिया किसी यूजर को चाहिए कि नहीं चाहिए? दैट द प्रॉब्लम थिंग, जो अभी शायद जतिन ने ही बोला था कि जो आइडिया मैं अभी सोच रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं सोचती हूँ कि मैं एक पेन बनाने की कंपनी बनाऊं, तो क्या ये पेन किसी को चाहिए कि नहीं चाहिए? राइट, वेदर अ प्रॉब्लम एग्जिस्ट इन द मार्केट और नॉट। समबडी मे बी, बहुत सारी चीजें हैं मार्केट में, पेन ऑलरेडी है, लेकिन मेरा पेन उनको चाहिए कि नहीं चाहिए, ये सोचना होता है। तो when you think about an idea, the very first thing to think about after the idea is what is desirable to the users. जिन कस्टमर्स को हम अपना आइडिया बेचेंगे, सेल करेंगे, वो उन्हें चाहिए कि नहीं चाहिए। नेक्स्ट इज व्हाट इज वायबल इन द मार्केट प्लेस। अब वायबल का मीनिंग कौन बता सकता है मुझे? which can be used, हाँ, मतलब मार्केट फ्रेंडली। हाँ, मार्केट फ्रेंडली है। वायबल का अगर हम अपने फाइनेंशियल टर्म्स में बोले तो ये आइडिया जो हम एक प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, ये मार्केट में फ्लोट करेगा तो मुझे पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे? तो अगर पैसे आएंगे मतलब ये आइडिया बिल्कुल वायबल है, मेरा ये पेन सेल होगा, राइट। नेक्स्ट इज next we think about, when we think about starting up a business, is what is possible with technology.
पहले तो हमने ये सोचा कि यूजर्स को उसकी जरूरत है कि नहीं, फिर हमने सोचा कि ये जरूरत तो है लेकिन हो सकता है कुछ लोग खरीदे और बाकी मार्केट में चले ही ना। लेकिन अब क्या ऐसा कुछ हो सकता है क्या कि हम टेक्नोलॉजी यूज करके कुछ ऐसा बनाए कि सबको पसंद आए और वो बिल्कुल बहुत मतलब बिल्कुल वायरल हो जाए हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, इन सब चीजों इन तीनों क्वेश्चंस का जो एक समराइजेशन है उसको बोलते हैं इनोवेशन। क्योंकि हमें बिजनेस अगर स्टार्ट करना है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर मुझे बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव ही सिर्फ बनना है कहीं पे, तो मुझे इन सब चीजों की क्या जरूरत। द थिंग हियर इज every employee in any company must have that entrepreneurial mindset। entrepreneur क्या होता है, कौन होता है entrepreneur, कौन बताएगा? जतिन आप बताओ। One who commercializes the problem solving. हाँ, entrepreneur is the person who has that idea and the innovation, जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रोडक्ट या सर्विस बना रहा है, राइट? तो सिर्फ एक फाउंडर ही नहीं किसी प्रोडक्ट को सेल कर सकता, अनलेस एवरी एम्प्लॉय इन द कंपनी हैज दैट माइंडसेट ऑफ सेलिंग इट। और वो तब आएगा जब उसको बिल्कुल यू नो दैट पैशन दैट ये प्रोडक्ट में मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम फाउंडर ऑफ माई कंपनी, अगर मैं किसी को हायर करती हूँ तो मैं ये नहीं देखती हूँ कि वो उसको सेल कर रहा है कि नहीं, मैं ये देखती हूँ कि उसमें उसके क्या आइडियाज आ सकते हैं कि इस पेन को मुझे मार्केट में बिल्कुल वायरल करना है, जबकि ऑलरेडी पेन है मार्केट में। तो वो बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव जो सबसे यू नो कस्टमर के साइड में है, मैं नहीं हूँ, और वो जा रहा है मार्केट में बेचने के लिए, तो वो लेके आएगा आइडिया कि मैम मैं तो वो पेन बेचने गया था, बट एक मुझे लगता है कि उस पेन में अगर हम बहुत कलरफुल यू नो कार्टून्स बना दे तो जो स्कूल वाले स्टूडेंट्स हैं वो उस पेन को पक्का खरीदेंगे। तो वो आइडिया और वो इनोवेशन कौन देगा? हर एम्प्लॉय, एवरी एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी विल गिव। सो दैट इज व्हाई एवरी पर्सन इन द कंपनी, जहां पे भी खरीद बेचना हो रहा है, उसको समझ में आना चाहिए कि एक प्रोडक्ट की जीरो लेवल से जर्नी क्या है, कैसे उस फाउंडर ने बनाया है। अगर फाउंडर ने बनाया है, अगर मैं उस फाउंडर की जगह हूं तो मैं क्या कर सकता हूँ, और तभी वो सजेशन देते हैं। और वो सजेशन यू नो तभी वो टीम वर्क होता है, एक दूसरे में जब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं कि ये यूजर को बिल्कुल चाहिए, ये मार्केट में बिल्कुल चलेगा। और अगर हम टेक्नोलॉजी अभी तो बिल्कुल एआई है, आपके पास ब्लॉकचेन है, आपके पास इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, उसको यूज करके आप क्या ऐसा पेन बना सकते हैं। तो एक बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव ही क्यों ना हो, बिजनेस के बारे में सारा आइडिया होना चाहिए। ठीक है, राइट। तो ये है वो आइडिया, बिल्कुल ऐसे स्टार की तरह चमकना चाहिए, चाहे वो फाउंडर हो या चाहे वो कोई भी एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी हो। दैट माइंडसेट शुड बी देयर, दैट यू नो स्पार्कलिंग आइडिया शुड बी देयर कि इस प्रोडक्ट को मुझे कस्टमर को वैल्यू के साथ कैसे देना है। अगर हम बहुत ज्यादा मनी माइंडेड होके बेचते हैं तो वो कभी नहीं बिकता। रीजन बीइंग, हमको वैल्यू देना है कस्टमर्स को, हमको क्या देना है? वैल्यू। हम उसको वैल्यू देंगे तभी वो हमारा प्रोडक्ट खरीदेगी, अदरवाइज उसके दिमाग में ये रहेगा कि मेरा तो बहुत पैसा लग जा रहा है यहाँ पे। अगर हम अच्छा वैल्यूज देंगे तो उसके माइंड में ये नहीं आता, उसको ये दिखता है कि नहीं यहाँ पे तो मुझे बहुत अच्छा वैल्यूज मिल रहा है, कोई बात नहीं, इतना पैसा लगा तो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम क्वालिटी चीज तो मिली है मुझे, राइट? So that value, that quality, that service, that customer handling should be there when you really want to sell anything, or any business has to grow in the market. आइडिया अभी जैसा इसके पिछले इसमें स्टार में बना हुआ आइडिया था, अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया है, अगर आपने किसी से कहा ही नहीं, तो क्या बिजनेस स्टार्ट हो पाएगा? नहीं होगा ना? नो मैम। बिल्कुल। और अगर आइडिया हमने ऐसा बनाया है जो कि बिल्कुल वायबल नहीं है मार्केट में, रिसर्च भी सपोर्ट नहीं करती है। रिसर्च नहीं सपोर्ट करने का क्या मतलब है कि हमने बस बना दिया है और हम उसका मैन्युफैक्चरिंग किए जा रहे हैं, बेचते जा रहे हैं, लेकिन शायद वो बिल्कुल प्लास्टिक जैसा हो। प्लास्टिक का भी क्या हालत है, प्लास्टिक जब इनोवेट हुआ था तब तो सबको बहुत बढ़िया लगा था, अगर ये क्या चीज है, हम अपना सामान इसमें रख सकते हैं,
और अगर हमें कोई लिक्विड वाली चीज रखनी है, हम पॉलिथीन में बांध के घर लेके जाते हैं, गोलगप्पे का जो रस है वो पानी होता है, लेकिन एक्चुअली में पॉलिथीन इज डिजास्टरस, राइट? तो अगर रिसर्च सपोर्ट नहीं करती है और अगर हम ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो अभी नहीं तो 10 साल बाद वो बहुत ही ज्यादा डिटोरिएटिंग होगा, मतलब आपके एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा नहीं होगा और कोई भी कस्टमर आपका वो प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहता। तो अगर अभी आप देखिए तो जितनी भी प्लास्टिक मेकिंग कंपनीज है, अगर आप एकदम से बंद कर दे उनको, उनका बिजनेस कैसे चलेगा? नहीं चल सकता, क्योंकि हर वो मैन्युफैक्चरर उसको ऑर्गेनिक पॉलिथीन बनाने नहीं आता है। ऑर्गेनिक पॉलिथीन बनाने के लिए फिर उनको वैसे रिसर्च केमिस्ट रखने पड़ेंगे, वो उतना अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर आप मतलब जहाँ पे जैसे आप किसी ऐसे एरिया के मैन्युफैक्चरर को ले लीजिए जिसको नॉलेज ही नहीं है कि भाई प्लास्टिक मुझे पता है कि बेचना है, बनाना है और बेचना है, अभी ऑर्गेनिक क्या होता है, अभी ये इसमें मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा प्लास्टिक लोग खरीदे। तो इसलिए रिसर्च शुड बी रेडी व्हेनेवर यू आर स्टार्टिंग एनी आइडिया, एनी प्रोडक्ट, एनी सर्विस इन द मार्केट। अभी ये क्या है बताओ मुझे? ट्रैप। किसका? माउस ट्रैप। माउस ट्रैप 1897 में सबसे पहली बार आइडिएट और यू कैन से बनाया गया था कि भाई चूहे बहुत हो जा रहे हैं और चूहे को हमें पकड़ना है, तो हमें कुछ ऐसा माउस ट्रैप बनाना चाहिए जिससे हम चूहे को पकड़ लें। सो हाउ मच इनोवेशन का मतलब जो एक 1897 में बना था और आज आपका 2023 चल रहा है, इसमें बहुत सारे आइडिएशन इनोवेशन किए गए होंगे, राइट? क्योंकि हर नया मैन्युफैक्चरर सोचता होगा कि मेरा वाला ज्यादा बिके तो मैं उसमें कुछ नया कर दूं। तो बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स ने अपने आइडिया इनोवेट किए होंगे कि मेरा वाला माउस ट्रैप बहुत बिकना चाहिए। बट एक्चुअली में होता क्या है, अगर एक मिनट देखा जाए तो इन द अराउंड 2010 इन द ईयर 2010 4400 पेटेंट्स वेर फाइल्ड। अभी पेटेंट्स किसी को पता चलता है क्या है पेटेंट? Yes, like you cannot copy that thing, otherwise you will be sued. हाँ, तो इतने सारे मतलब मेरा एक्सक्लूसिव आइडिया, मतलब मेरा आइडिया कोई ना चुरा ले, उसके लिए हम पेटेंट फाइलिंग करते हैं, ठीक है? तो करीब 4400 पेटेंट्स फाइल किए गए थे 2010 में, और उसमें से आपको क्या लगता है कि कितने लोग, मतलब कितनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज पैसा कमा पाई है? क्या सारे के सारे 4400 कमा पाए होंगी, या कितने होंगे जिन्होंने नया नया इनोवेट करके माउस ट्रैप में और अपना बेचा हो? Less than 1%. हाँ, लेस देन 1% है। अगर हम नंबर के टर्म्स पे देखें, ओनली 20, दिस इज वेरी लेस। तो आपका प्रोडक्ट या आप जिस भी कंपनी में है उस कंपनी का प्रोडक्ट या सर्विस ऐसा यूनिक होना चाहिए, एक यूनिक सेलिंग पॉइंट होना चाहिए उसमें, जिसमें कि सामने वाला कस्टमर खरीदने के लिए जरूर सोचे, ठीक है? और जब आप किसी को सेल कर रहे हैं, आप उस कंपनी के एम्प्लॉय है या आपका खुद का भी अगर बिजनेस है, तो आप वैसा ही बनाए, वैसा ही तरह से कम्युनिकेट कर पाए कि व्हाई माय प्रोडक्ट इज वेरी बेटर देन अदर्स, ठीक है? व्हाई माय प्रोडक्ट। सो आपको क्या लगता है कि व्हाई डोंट एवरी इनोवेशन सक्सीड? जैसे मैंने बताया, मतलब 4400, अगर हम हिंदी में बताए तो 4400 पेटेंट्स फाइल किए गए थे और सिर्फ 20 ही पेटेंट वर्क कर पाए, मतलब 20 लोग ही कमा पाए, 20 मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ही कमा पाए। तो हाँ, बताइए। राहुल, आप बताइए, आपको क्या लगता है कि हर इनोवेशन, हर आइडिया क्यों नहीं सक्सीड करता? Ma'am, some innovations are forced innovations, like they are not needed or necessary. They just think that this is something different and they call it innovation. Right, मतलब कॉपी वो रहता है, कॉपी कैट यू कैन। Like everything is copied, they just make a small change. So that change is not that relevant. Most of it. राहुल, आप बताइए। या मैम में कॉपी हो रहा है, अदरवाइज जो पेटेंट राइट्स जो मैम लग रहा है। और भी कोई रिप्लाई करना चाहे तो कर सकते हैं, किसी के आंसर देने में कोई रुकावट नहीं है। तो
आप जितना इंटरेक्ट करेंगे उतना ही सीखेंगे, जितना शांत बैठेंगे तो वो फिर आपको नींद आने लगेगी, आप बोर होने लगेंगे, राइट? सो यस, तो सबसे पहले मैंने आपको आइडिया बताया कि आइडिया जब हम कुछ सोचते हैं तो हमें क्या क्या चीजें दिमाग में रखनी चाहिए और आइडिया मार्केट में चले उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। सो नाउ नेक्स्ट थिंग इज अबाउट बिजनेस कंसेप्ट। अभी यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि द मैन्युफैक्चरर हु वेट्स फॉर द वर्ल्ड टू बी क्रिएटिंग अ पाथ टू हिज डोर इज अ ग्रेट ऑप्टिमिस्ट, बट द मैन्युफैक्चरर हु शोज दिस माउस ट्रैप, जो मैंने वो बताया था कि 1897 में माउस ट्रैप बना था, उसके बाद भी इतने सारे इनोवेशंस वाली कंपनी आई, फिर भी कुछ ही चल पाई। तो जो मैन्युफैक्चरर shows this mouse trap and its value, because customer needs value, quality, to keep the smoke coming out of his chimney, वही बिजनेस चल पाता है। और ये मिस्टर ओबी विंटर्न ने कहा था। इसका मतलब कुछ समझ में आ रहा है किसी को? Yes, ma'am. बताइए। Like if you have innovated something and you have the value in that innovation, which can add value to the life of the people, only then your business can be successful. If it's not adding any value, then your business is bound to fail. हाँ, this is one part of it. इसका एक्चुअल मीनिंग ये है कि आइडिया सिर्फ आइडिया ही रह जाएगा जब तक आप उस आइडिया को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। वो जो माउस ट्रैप जिसके किचन के चिमनी से स्मोक आ रहा है, मतलब ही इज एग्जीक्यूटिंग दैट आइडिया ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू माउस ट्रैप। और जो फर्स्ट सेंटेंस में मैन्युफैक्चरर है वो ये सोच रहा है कि आइडिया तो है मेरे पास कि मुझे माउस ट्रैप चेंज करना है, मैं ऐसा माउस ट्रैप बनाऊंगा कि बाकी सारे मैन्युफैक्चरर की सेलिंग बंद हो जाएगी, सिर्फ मेरी बिकेगी, लेकिन कोई मेरे लिए वो पाथ बना दे, वो जर्नी बना दे। मेरे पास सिर्फ आइडिया है। पहला वाला सेंटेंस का मतलब ये है, मेरे पास सिर्फ आइडिया है, बस बाकी लोग इसको कर दें। आप एक रास्ता बना दी, वही लोग कर दे सकते, मैं कुछ नहीं कर सकता। और जो दूसरा सेंटेंस है उस सेंटेंस में ये दिखाया जा रहा है कि वो ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर चुका है अपने आइडिया को, उसके चिमनी में से स्मोक आ रही है, मतलब वो बना रहा है और बेच भी रहा है और वो बेच भी लेगा। तो जो लोग सिर्फ आइडिएशन स्टेज में रह गए, एग्जीक्यूट करने के लिए प्लानिंग एंड एक्शंस पे नहीं गए, वो बिजनेस को आगे बढ़ा ही नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट इज अ वैल्यू प्रपोजिशन कैनवस। अभी सबसे मैं वैल्यू जो बोल रही हूँ उसका मतलब क्या हो? वैल्यू प्रपोजिशन हम प्रपोज कर रहे हैं कि जो दूसरी कंपनी है वो भी एक माउस ट्रैप बना रही थी और आज मैं अगर कोई माउस ट्रैप बनाने जा रही हूँ, तो व्हाट डिफरेंट वैल्यू एंड वेरी यूनिक वैल्यू, डिफरेंट वैल्यू एंड वेरी यूनिक आई एम गोइंग टू गिव कि मेरा प्रोडक्ट या मेरा सर्विस मार्केट में चले। तो ये वैल्यू प्रपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप कुछ भी सेल करने जा रहे हो, अगर आप अपने कंपनी के प्रोडक्ट को नहीं बता पाते हो कि मेरे कंपनी में क्या यूनिकनेस है, तो कोई कस्टमर लेगा ही नहीं, उसको कोई वैल्यू दिख ही नहीं रहा है। उसको तो सिर्फ मतलब जैसे मैंने पेन बनाने का बोला था, तो उसको बोलेगा इसमें क्या है, ये तो सिंपल पेन ही तो है, मैं तो वो रिनॉल्ट का पेन खरीदती हूँ, तो इसलिए मुझे तुम्हारा ये पेन नहीं चाहिए। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए, इवन इफ यू आर अ फाउंडर और नॉट, you are just an employee, you should know what is that value your company is giving to the customers. फिर बिजनेस मॉडल पे बिजनेस रन कर पाता है। now बिजनेस मॉडल क्या होता है? एक मॉडल होता है जैसे कि B2B और B2C में बता रही थी, या तो हम डायरेक्टली किसी कस्टमर को सेल करते हैं, और या तो हम भी बिजनेस है और सामने वाला भी एक बिजनेस एंटिटी है, उनको हम सेल करते हैं। ज्यादातर जो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है, सॉफ्टवेयर जो सेल होता है, वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दूसरे बिजनेस कंपनी को ही सेल कर रही है। जोहो का नाम कितने लोगों ने सुना है? जोहो पता है? ओके, फ्रेशवर्क्स, सेल्सफोर्स, ओके, हाँ, तो एक तो मैं असाइनमेंट दूंगी बाद में आपको, बाकी आप लोग थोड़ी इन कंपनीज को देखिए कि ये लोग सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में दे आर डूइंग द बिजनेस। Zoho, Salesforce, Freshworks, Lead Squad, these are the companies, they sell their software to another company to run their business. For example, जैसे मेरी एक एजुकेशनल स्टार्टअप कंपनी है,
हमारे पास जो कस्टमर्स आते हैं वो है हमारे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट तो मान लो हमारे पास एक दिन में 1000 आते हैं। अब हमने 1000 स्टूडेंट को एक कस्टमर जर्नी हम जीरो से लेकर जो हाई तक ले जाएंगे कि वो आया, उसने इंक्वायरी किया, और अगर हमारे पास कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जिससे हम उस कस्टमर के रिसोर्स को मैनेज कर पाए, दैट इज कस्टमर रिसोर्स मैनेजमेंट इज वेरी पुअर, तो अगर 1000 भी आया होंगे तो सारे चले जाएंगे, क्योंकि हम मैनेज नहीं कर पाए, हमने उन इंक्वायरीज को कॉल भी नहीं किया, फॉलो अप भी नहीं किया, राइट। तो उस मैनेजमेंट को मैन्युअली हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है जब आपके पास में हजारों डेली कस्टमर आ रहे हो। तो वहां पर ये सॉफ्टवेयर यूज होता है जो ऑटोमेटेड होता है। अब वो इंक्वायरी आई, उसने इंक्वायरी डाली, ऑटोमेटिक ईमेल जाता है उनको, किसको, कस्टमर को, कि ओके someone from our company would be calling you up. If they do not call you, this is the number you call. ठीक है। तो ये ऑटोमेटेड सिस्टम हो जाता है, तो हम 1000 इंक्वायरी क्या, हम 10,000 इंक्वायरीज को भी सॉफ्टवेयर के थ्रू हैंडल कर पाते हैं। So that is called the first thing is value proposition, कि हम क्या क्वालिटी वैल्यू दे रहे हैं कस्टमर को जिसके लिए वो हमारा प्रोडक्ट एक बार खरीदे और बार बार खरीदे। और बिजनेस मॉडल हमारा कौन सा है, हम डायरेक्टली किसी बिजनेस को सेल कर रहे हैं या हमारा वो बिजनेस या मेरी कंपनी जिसमें भी हम काम कर रहे हैं वो किसी कस्टमर को डायरेक्टली दे रहे हैं। अब यहाँ जो थर्ड लिखा हुआ है दैट इज द रेवेन्यू मॉडल। रेवेन्यू मॉडल का मतलब है कि किस तरीके से हमारे पास रेवेन्यू आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल रेवेन्यू मॉडल्स में आता है सब्सक्रिप्शन, और ये मैं ना और भी नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी बिजनेस मॉडल के बारे में, फिर नेक्स्ट में मैं रेवेन्यू मॉडल के बारे में बताऊंगी। अभी इतना ही बताना चाहूंगी कि जैसे नेटफ्लिक्स है, उसका है मॉडल रेवेन्यू का सब्सक्रिप्शन बेस्ड। आप हर महीने उसमें रिचार्ज करते हैं, है ना, और तब आप मूवीज को देख पाते हैं। या फिर आप देख लीजिए अपना जो अपना मोबाइल है, एयरटेल हो, वोडाफोन हो या आइडिया हो, वहां पे आप प्रीपेड का अगर आपका नंबर है तो आप बार बार उसको रिचार्ज करते हैं। दैट इज अ सब्सक्रिप्शन मॉडल वेयर यू सब्सक्राइब एवरी मंथ और मे बी एनुअली। दैट इज अ रेवेन्यू मॉडल दैट इज सब्सक्रिप्शन बेस्ड। ठीक है, तो इसका और डिटेल में मैं और आगे भी समझाऊंगी। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चंस होंगे, आपको उसका डिफरेंस समझना है। पहला है डू यू लाइक माय प्रोडक्ट। अगर आप किसी कस्टमर से बात कर रहे हैं, आपने को बताया कि फॉर एग्जाम्पल कोर्सेज ही ले लेते हैं कि हमारे पास एक इंजीनियरिंग कॉम्पिटिटिव जेईई मेन का एक कोर्स है और ये फीचर्स है। बताने के बाद में आपने उसको बोला डू यू लाइक माय प्रोडक्ट, या फिर ये बोलते हैं वुड यू पे फॉर माय प्रोडक्ट। कौन सा वाला आपको लगता है कि ज्यादा अच्छा है, बिल्कुल बात बन जाएगी। वुड यू पे फॉर माय प्रोडक्ट, सेकंड वाला में वुड यू पे फॉर माय प्रोडक्ट। ओके, बाकी लोग भी बता सकते हैं। एनीवेज, सो वुड यू लाइक माय प्रोडक्ट क्यों अच्छा है, आपको क्यों लगता है कि कस्टमर खरीद लेगा, और उस पहले वाले में उसको शायद क्या होगा। Ma'am, actually, when you ask someone, do you like it? It creates an impression on them that they may not like it. But if you are just asking them, would you pay for my product? You are creating an impression that you already like it a bit. Would you pay it now? Yes, absolutely. राहुल, आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? Yeah, ma'am. The first of the only of the like of product, like and dislike only of the. But the second is chance you have to like, and after you said to the would you pay of my product, so exactly yes or no. Yes, very good. आप लोग बहुत ही अच्छा इंटरेक्ट कर रहे हैं और मुझे ऐसे इंटरेक्ट करने वाले स्टूडेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं। बाकी लोग शायद नींद आ रही होगी, तो आई एम रियली सॉरी। एंड सो रेवेन्यू मॉडल के बारे में आगे क्लासेस में और पढ़ेंगे, एक 2 स्लाइड्स और है इसमें। तो यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, देन यू हैव टू थिंक अबाउट द सेंटेंस इज कि मोबाइल इज अ बिग डील, मोबाइल इज अ वेरी बिग थिंग, दिस मोबाइल इज रियली अ ग्रेट इनोवेशन है। मानते हो आप लोग, सब लोग? पहले हमारे पास मोबाइल नहीं हुआ करता था, एक वो लैंडलाइन वाला फोन होता था, इसमें हम लोग ऐसा रिसीवर उठा के बात करते थे। तो जब मोबाइल लॉन्च हुआ, दिस इज रियली अ ग्रेट इनोवेशन, बट डज दैट मीन इट विल magically lead to a big deal for you? Big deal मतलब big business for you. मोबाइल के थ्रू आपका बहुत बिग डील, बहुत बिग बिजनेस बन सकता है क्या? You need
to build a sustainable mobile business, not just a one hit wonder. इसका मतलब ये है कि मोबाइल में अगर आपका प्रोडक्ट का, आपके सर्विस का कोई ऐप है, राइट, चाहे आप अभी आप ये मत सोचिए कि आप एम्प्लॉय, आपको बिजनेस क्या मतलब, अगर आप बिजनेस समझेंगे नहीं तो आप उसको बेचेंगे कैसे? तो अगर आपके कंपनी का कोई ऐप है मोबाइल में और आपके कस्टमर्स उस ऐप को यूज करेंगे कि नहीं करेंगे, वो किस चीज पे निर्भर करता है कि वो सस्टेनेबल बिजनेस होना चाहिए। ओके, सो बहुत सारे ऐप बनते रहते हैं आपके, बहुत लोग ना वेट लॉस के लिए बहुत सारे ऐप देखे होंगे आपने। अगर आप और कौन से बहुत सारे मेजर एप्स हैं, एजुकेशन में तो है ही, ठीक है, वर्कआउट्स, हाँ, मतलब हर प्रोडक्ट में बहुत सारे एप्स हैं, लेकिन 2% ऑफ द ऐप डेवलपर्स क्लेम दैट 50% पूरे एंटायर जो आपका गूगल प्ले स्टोर है उसमें 54% ऑफ ऑल रेवेन्यू उनके पास जाता है। इनके पास जो 2% ऑफ दैट प्ले स्टोर है, ओनली 2% ऑफ दैट प्ले स्टोर गेट द बिजनेस डन। आई मीन 100 में से 54% उन्हीं 2% के पास जा रहा है। तो आप जहां कहीं भी काम कर रहे हो, जिसका भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, या आप खुद भी अगर आप कोई अपना बिजनेस बनाने के लिए सोच रहे हैं, सो हाउ डू योर बिजनेस ज्वाइन दैट एल्यूरिंग 2%? एल्यूरिंग का मतलब है कि वो जो मार्केट में सबको अट्रैक्ट कर रहा है, वो 2% ऐप जो पूरे मार्केट का 54% शेयर लेके जा रहा है, आपका, आपके कंपनी का वो प्रोडक्ट भी उस 2% में हो, उसके लिए आप क्या लगता है कि क्या होना चाहिए? यूनिक। यस, वही मैं सोच रही थी, मैं इतने देर से बता रही हूँ दैट यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन कितनी है। सो वो बनाने के लिए आपका अप्रोच कैसा होगा? व्हाट वुड बी योर अप्रोच फॉर दिस? मैम, फर्स्टली वी शुड डिसाइड अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। पार्टिसिपेंट शायद सो गए हैं बाकी। ओके, कुछ तो होगा आपको अगर, हाँ। Firstly, you should decide a problem statement on which you want to develop your app on, and then do a market research that how many apps are there in this area. If there are, then try to bring some unique feature to it, which is your USP. And if there are no such app available, then you are already having a sorted game because you are the first mover. Right. And also, जब आप कस्टमर को कॉल करके उस सामान को जिसको आपको सेल करना है, चाहे वो कोर्सेज हो या कोई भी प्रोडक्ट हो, तो आपका अप्रोच भी यूनिक होना चाहिए। क्योंकि देखो, एक कस्टमर के पास में ना हजारों कॉल आते रहते हैं कि हेलो, आई एम कॉलिंग फ्रॉम हियर, वुड यू लाइक टू टेक लोन। मैं लोन का ही अगर बताऊं, HDFC बैंक में अगर आपका अकाउंट हो या किसी भी बैंक में अकाउंट हो, दिन भर में हजारों कॉल आते रहते हैं। लेकिन आपका क्या यूनिक अप्रोच होना चाहिए कि वो फोन काटे नहीं और वो बोले कि हाँ, मुझे समझना है, मुझे सुनना है, और फिर वो वहां तक आए कि हाँ, मुझे खरीदना है। तो वो अप्रोच एज एन एम्प्लॉय, बीइंग अ बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव हो सकता है। एक फाउंडर, एक बिजनेस ओनर के पास में वो दिमाग होना चाहिए कि वो यूनिक प्रोडक्ट क्या बनेगा कि वो जो 2% जो मार्केट में ले जा रहे हैं 54% रेवेन्यू, उसमें मेरा भी हो। ठीक है, so that is how the approach would be. Approach should be like, you know, the business model with a dual mindset of building. Dual mindset क्या होगा कि ऐप तो बहुत अच्छा होना चाहिए और आपका बिजनेस भी सस्टेनेबल होना चाहिए। मान लो कि बिजनेस, आपका प्रोडक्ट ना बहुत अच्छा है, लेकिन आपका जो ऐप बना हुआ है उसका नेविगेशन अगर मैं बताऊं, आप जैसे आप फ्लिपकार्ट ऐप यूज करते हो या अमेजन ऐप यूज करते हो, जैसे ही आप उस ऐप में जाते हो, आप ना उसमें सर्च करते हो ये मुझे कपड़ा खरीदना है, तो फिल्टर्स लगे हुए हैं, तो आपके लिए वो बहुत ही हेल्पफुल हो, मतलब फास्ट आप उसमें सर्च कर पाए, तो ऐप ऑसम होगा बिल्कुल। मतलब कस्टमर के जगह पे रह करके अगर कोई डेवलप करता है ना, समझ पाता है कि वो क्या यूजर एक्सपीरियंस
ऐप में से मिल रहा है। कोई कोई ऐप आप कभी कभी खोलते होगे ना, बहुत ही या तो स्लो चलता हो, या फिर आपको लगता है कि मुझे जो सर्च करना था वो कुछ मिसिंग है इसमें। तो इसीलिए इवन दो आप वो प्रोडक्ट आपको बहुत अच्छा लगता था, आपको प्रोडक्ट खरीदना था, लेकिन जब आपने ऐप को ओपन किया तो आपका मन डाइवर्ट हो गया, मुझे नहीं खरीदना, मैं दूसरे से देख लेता हूँ। क्यों? क्योंकि ऐप अच्छा नहीं था। So that is why an awesome app and a sustainable eventual business जो कि रन कर सके वैसा होना चाहिए। तो your mindset, कोई चाहे फाउंडर हो या जो सेल कर रहा है, उसको पता होना चाहिए कि हमारा ऐप बहुत अच्छा है, तभी तो आप बोल पाओगे कि मैम वी हैव अ यूनिक ऐप, मतलब किसी भी कस्टमर को जब बात करोगे। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट प्रॉब्लम इज योर बिजनेस ट्राइंग टू सॉल्व एंड व्हाट इज द सॉल्यूशन। आप किसी भी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो या कुछ भी नया आइडिया इनोवेट करके आप कर रहे हो, आपको इसका आंसर पता होना चाहिए कि हम कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। अभी मैंने मेरे कंपनी के बारे में बताया था, तो मैंने क्या प्रॉब्लम बताया था, मैं किस प्रॉब्लम पे काम कर रही हूँ। कंफ्यूजन इन करियर पाथ। दैट इज वन पार्ट जो अभी हमने शाइन प्रोजेक्ट से स्टार्ट किया है। और कुछ था, कोई गैप था जिसको मैं बार बार बता रही थी कि ये गैप है जिसको हम भरना चाहते हैं। लर्निंग गैप नहीं, दैट इज अ सक्सेस गैप। कि एक पेरेंट स्कूल में बच्चे को भेज रहा है, वहां भी पैसे खर्च करता है, फिर वो ट्यूशन भी पढ़ाता है, फिर वो तब भी उसे पता नहीं है कि करियर के बारे में, क्योंकि उसने सक्सेस ड्रिवन पढ़ाई की ही नहीं है। तो वो जो सक्सेस गैप है, दैट इज द प्रॉब्लम माय कंपनी इज सॉल्विंग। और सोल्यूशन क्या दे रहे हैं हम क्वालिटी मेंटोर्स दे रहे हैं, यू कैन से क्वालिटी टीचर्स दे रहे हैं। हमारा जो ग्रुप क्लास होता है वो 15 से ऊपर कभी नहीं रहता है, और बहुत ही यूनिक हमारा कोर्स होता है, चाहे वो स्कूल लेवल का हो चाहे कॉलेज लेवल का हो। और लाइव कंसेप्ट रहता है हमारा, ऐसा नहीं है कि बच्चे सिर्फ रिकॉर्डिंग में पढ़ते रहे और फिर चैट में क्वेश्चन पूछे, क्योंकि जो स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं वो चैट में इतना नहीं पूछ सकते, और रिकॉर्डिंग देख देख के अगर पढ़ेंगे तो उनकी आंखें भी खराब होंगी। लेकिन लाइव क्लास में इसलिए खराब नहीं होगी क्योंकि वो बात कर रहे होते हैं, इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, तो उसमें थोड़ी कम आईज खराब होती है। लेकिन कंटिन्यूस अगर वीडियोस देख रहे होते तो आई इम्पैक्ट ज्यादा, राइट। सो दैट इज प्रॉब्लम एंड दैट इज द सोल्यूशन। तो जब भी आप अपना कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, आपको उसका दैट प्रॉब्लम जिसको वो प्रोडक्ट सॉल्व कर रहा है वो पता होना चाहिए। जैसे करियर असेसमेंट आप जब किसी को सेल करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये प्रॉब्लम क्या है किसी के साथ में। तो प्रॉब्लम ये है उनके साथ में कि उन्हें पता नहीं कि हमें किस करियर में जाना है। करियर अगर मैं चाहूँ कि मुझे पायलट बनना है और मुझे एयरफोर्स का पायलट बनना है, ये मुझे मालूम है, ठीक है। एज अ स्टूडेंट आई एम जस्ट टेलिंग दैट आई वांट टू बी एन एयरफोर्स पायलट, लेकिन मुझे जर्नी तो पता ही नहीं है कि मैं पहुंचूंगी कैसे पायलट बनूंगी मैं। अब उसके बाद ये भी मुझे अगर पता चल जाता है अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के थ्रू या टीचर्स के थ्रू कि एयरफोर्स पायलट बनने के लिए ना आपको एयरफोर्स एकेडमी का जो इंडियन एफकैट का एग्जाम होता है वो क्लियर करना पड़ता है, लेकिन ये तो मुझे पता ही नहीं है कि मेरे पास में वो स्किल है कि नहीं, राइट। तो वो स्किल है कि नहीं वो जानने के लिए करियर असेसमेंट देना है, तभी हमारा पैशन, इंटरेस्ट, वैल्यूज वहां पे पता चलता है। और उस रिपोर्ट को करियर काउंसलर जो सर्टिफाइड होते हैं वो एक्सप्लेन करते हैं कि इसके एक एक रिपोर्ट में क्या लिखा है। तो द प्रॉब्लम इज अननोन जर्नी फॉर द करियर एंड सोल्यूशन इज करियर असेसमेंट एंड करियर काउंसलिंग, ठीक है। इसी तरह से हर प्रोडक्ट में होता है। जैसे मैंने आपको सॉफ्टवेयर सर्विस वाला बताया था कि ज़ोहो, लीड स्क्वायर, सेल्सफोर्स, ये लोग किस प्रॉब्लम पे वर्क कर रहे हैं। जितने भी कंपनीज हैं उनके पास अगर हजार इंक्वायरी आती है बिजनेस के लिए, वो मैनुअली सॉल्व नहीं कर सकते। दैट इज द प्रॉब्लम एंड व्हाट इज द सॉल्यूशन, देयर सॉफ्टवेयर सर्विस, राइट। तो किसी भी बिजनेस में एक प्रॉब्लम और एक सॉल्यूशन जरूर होता है, तो इसका आंसर आपके पास रेडी रहना चाहिए। Now, what is unique about the business and would the customer pay for this? Ma'am, I have a question. हाँ बताओ. Ma'am, the first problem which you stated, like the first question which you took, I have one question related to that. You said
mentors will give you personalized discussion about your assessment. हाँ, That will be online or offline? that would be online. Online. Okay, so like हाँ. they will join a meet, like हाँ, us, गूगल like we मीट are और on जूम, meet right हाँ, ऑनलाइन होगा और वो 1 आवर से 2 आवर का होगा एंड रिपोर्ट का एक एक चीज वो बताएंगे एंड रिपोर्ट इज समथिंग लाइक 32 to 40 पेजेस रिपोर्ट जो कि पेरेंट्स एंड स्टूडेंट अपने से नहीं समझ सकते. ठीक है. Okay. या सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज यूनिक अबाउट द बिजनेस. ये आपको पता होना चाहिए. अभी देखो करियर असेसमेंट, करियर काउंसलिंग के लिए भी मार्केट में बहुत सारे हैं, बट यहाँ पे क्या यूनिक है वो आपको फाइंड आउट करना होगा. पहले जब आप रजिस्टर करेंगे वो FAQ वाला पेज पढ़ेंगे, फिर भी कोई कंफ्यूजन होता है तो यू कैन आस्क मी, और इसमें नंबर दिया हुआ है जो साइन प्रोजेक्ट के फाउंडर है वो भी आपको बता सकते हैं. मेरा रेफरेंस दे दीजिए. ठीक है. सो नेक्स्ट इज व्हाट एल्स डू यू थिंक योर बिजनेस यूजर्स would be paying to willing for. अभी एक चीज तो उन्होंने ले लिया. अगर मैं उस करियर वाला ही बात करूं, उन्होंने करियर असेसमेंट तो ले लिया. ठीक है. अभी आपको क्या लगता है कि वो और ऐसा क्या हो सकता है जिसके लिए वो पे करे? तो वो है करियर काउंसलिंग, है ना. असेसमेंट तो ले लिया उन्होंने, लेकिन आपको क्या लगेगा कि ऐसा क्या हो सकता है कि मेरा बिजनेस और सेल हो? तो वो है करियर काउंसलिंग, क्योंकि रिपोर्ट तो उन्हें समझ ही नहीं आएगी. तो आप उनको बता सकते हो कि मान लो आप किसी बच्चे के पेरेंट्स से बात कर रहे हो कि सर यू मस्ट हैव सीन द रिपोर्ट, अगर आपको समझ में आ गई है तो वेल एंड गुड, अगर आपको नहीं आई है तो हमारे पास सर्टिफाइड करियर काउंसलर्स हैं और वो बहुत ही अच्छे से इलैबोरेट करके एक्सप्लेन करते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या लिखा है. एंड दैट इज रियली हेल्पफुल, क्योंकि आप अपना स्टोरी लाइन बना सकते हैं उसमें कि जब मैं स्कूल में था तो मुझे करियर के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन आज हमारे पास सर्टिफाइड करियर काउंसलर हैं जो आपके बच्चे को हेल्प कर सकते हैं. And that will really make the life, you can say life bed of roses. आप लाइफ हेल बना लेते हो जो आपको करियर करने का कुछ पता नहीं है. कल को अगर आप ग्रेजुएशन में ऐसा सब्जेक्ट पढ़ते हो जो आपको इंटरेस्ट भी नहीं है और ना ही आपके किसी करियर में वो हेल्प करने वाला है, तो यू विल मेक योर लाइफ हेल. आप हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहोगे कि ये तो मुझे करना नहीं था, ये तो मुझे समझ में भी नहीं आता. दैट इज व्हाई फ्रॉम द 9th 10th itself we should know कि मुझे करना क्या है लाइफ में, और वो तभी आएगा जब आपको एक अच्छा गाइडेंस मिले. तो ये सब आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हो, पिच कर सकते हो. बिजनेस की लैंग्वेज में इसको पिच करना कहते हैं. पिचिंग इन दैट वे दैट द कस्टमर थिंक्स ओके यस आई एम रेडी टू बाय. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट बिजनेस मॉडल्स डू कंपीटिंग बिजनेसेस ऑफर एंड हाउ वेल दे हैव वर्कड. तो अब यही जो मैं कह रही थी कि मार्केट में और भी कंपनीज हैं और भी करियर असेसमेंट करियर काउंसलर्स का है, तो उनका क्या बिजनेस मॉडल है, सो दैट अगर आप कस्टमर आपको बोलता है कि अरे ये तो मैंने पहले भी दिलाया था, कुछ फर्क नहीं पड़ा, कुछ समझ नहीं आया, है ना, तो आप बता सकते हो कि सर समझ में नहीं आया, लेकिन हमारे पास में जो करियर काउंसलर है वो एक्सपर्ट हैं और उनके बताए हुए जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो कई तो अब्रॉड गए हुए हैं, जिन भी कंट्री में बच्चों को पढ़ने जाना था, और वो बहुत खुश है अपने लाइफ में क्योंकि हमारे करियर काउंसलर ने उनको गाइड किया है. राइट. So this is just making something unique when you're talking to the customer. So what business model, ये थोड़ा सा आप एज अ डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव भी आपको देखना चाहिए कि अगर आपको लगता है कि मेरी कंपनी जिस भी कंपनी में मैं जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ वो बिक जाए, तो थोड़ा देख लो दूसरी कंपनी कैसे सेल करती है, उनका क्या प्राइसिंग है ना, कि आप देख सकते हो कि वो कैसे मार्केट में सेल कर रहे हैं. अभी हमारा जैसे कोर्सेज है, बायजूस ऐसा क्या कर रहा है और हम उसकी यूनिक क्या कर सकते हैं या हम क्या कर रहे हैं ऑलरेडी, ये भी पता होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि एजुकेशनल सेगमेंट का ही हमारा प्रोडक्ट है अभी, और कल को आपको कुछ और भी प्रोडक्ट सेल करना पड़ सकता है. जब आप मान लो आप कॉस्मेटिक्स सेल कर रहे हो, जिस भी कंपनी में आप जाओ कॉस्मेटिक्स सेल कर रहे हो, तो कॉस्मेटिक्स के एरिया में लैक्मी का क्यों अच्छा और क्या है ब्लू हेवन का क्यों खराब, ये पता होना चाहिए. एंड दैट इज द एंड, एंड आई थिंक 1 hour हमने किया, सो आई स्टॉप शेयरिंग इट नाउ. अभी आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना है आज की क्लास के लिए तो मुझे पूछिए, मैं आपको असाइनमेंट भेजूंगी अभी मे बी कल तक. और आप लोगों को कैसा लगा? Ma'am, the session was really great. I enjoyed. Okay, very good. Thank you. I have one question, ma'am. You said that we should know our competition really well. We should know what we are having an upper edge
in front of them. Hmm. What is our USP when we compare ourselves to Byju's or Unacademy? Okay. Because even they provide live sessions. उनके लाइव सेशंस में 150 बच्चे होते हैं मिनिमम. Okay. 10 times from our number of students. हम 15 से ज्यादा एक बैच में नहीं रखते. अगर 15 स्टूडेंट हमारे पास, मान लो 1500 स्टूडेंट्स आ गए सेम कोर्स को पढ़ने के लिए, तो हम एटलीस्ट 100 टीचर्स रखेंगे, so that हर 15 स्टूडेंट्स पे एक टीचर है. Okay. So like it becomes more personal. Yes. So ग्रुप में भी पर्सनलाइज्ड है वो. 1-on-1 तो है ही, मतलब जो बच्चे 1-on-1 पढ़ रहे हैं वो तो बिल्कुल कस्टमाइज्ड है. अगर 1-on-1 में क्या पता है कि बेनिफिट, अगर मान लो क्लास आज करनी है और अगर मुझे लगता है मैं क्लास नहीं कर पाऊंगी, एज अ स्टूडेंट आई एम टेलिंग, तो मैं इन्फॉर्म कर दी कंपनी में, मतलब हमारे पास स्टूडेंट इन्फॉर्म कर देता है कि मैम आज मैं क्लास नहीं कर पाऊंगा, तो टीचर भी बोल देती है ठीक है नेक्स्ट डे हम इसको रीशेड्यूल कर. लेकिन ग्रुप कोर्स में जो हम फिक्स करते हैं, तो फिर उसमें स्टूडेंट अगर नहीं आ पाता है तो हम रिकॉर्ड करके रखते हैं, और क्योंकि 15 स्टूडेंट्स ही है तो बहुत ही अच्छे तरीके से कोर्स चलता है, जिसमें ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में भागे जा रहे हैं. हाँ, जैसे आज मैंने एक ही आपको सिर्फ बिजनेस डेवलपमेंट का बेसिक्स बताया, एक मतलब कहाँ से हमारा बीज है बिजनेस का, एक आइडिया है जहाँ से जनरेट होता है. आइडिया तब काम करेगा जब आप उसके प्लानिंग एंड एक्शन पे जाएंगे. सिर्फ आइडिया तभी रह जाएगा जब हम ये सोचेंगे कि कोई आके डोर्स ओपन कर दे और बस सेल कर दे. मेरे पास आइडिया है, जब तक उसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे नहीं हो सकता, राइट? So this is all about business development basics.